وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں عائشہ خالد. افغانستان اور شمالی کوریا، ٹرمپ انتظامیہ کے 2 فورن پالیسی چیلنجز. اس بارے میں ہم بات کریں گے کچھ ہی دیر میں. یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. KPK کی پہلی خاتون اعلیٰ پولیس اہلکار، ایک پاکستانی کہانی. جاتے جاتے میں ان کو پھر سمجھا بھی دیتی ہوں، اگر آپ کانسٹیبل آ رہی ہیں تو آپ کے لیے یہ چاہیے، اگر آپ ایک پھول والی افسر بن کے آنا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے یہ کرائٹیریا ہے. افغانستان میں حساس معاشرتی رویوں پر بات کرتا ایک ٹی وی شو. اور ہالی ووڈ سے کچھ مزیدار خبریں ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں. پاکستان میں سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں، لیکن سیکیورٹی خدشات کا اندازہ آج باجوڑ ایجنسی میں ہونے والے اس حملے سے لگایا جا سکتا ہے جس میں 2 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہوئے ہیں. پاکستان اور افغانستان امریکہ کے لیے جنوبی ایشیا میں اس وقت اہم ترین فورن پالیسی چیلنجز ہیں. افغانستان اور خطے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی نئی پالیسی 7 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی سامنے نہیں آئی ہے. گزشتہ روز امریکی سینیٹر جان مکین نے افغانستان کے لیے اپنی کچھ تجاویز پیش کی ہیں. اس وقت چلتے ہیں ندیم یعقوب کے پاس جو موجود ہیں کیپٹل ہل پر اور ہمیں تازہ ترین اپڈیٹس دیں گے. جی ندیم. سینیٹر جان مکین نے جو اپنی نئی تجویز کردہ حکمت عملی ہے افغانستان کے لیے، وہ سن 2018 کا جو نیشنل ڈیفینس آتھورائزیشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی صورت میں پیش کیا ہے، جسے آئندہ ماہ سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. اس دستاویز میں جو حکمت عملی کی دستاویز ہے اس میں سینیٹر جان مکین کہتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے افغانستان کے بارے میں حکمت عملی کے اعلان میں تاخیر پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے ریپبلکن پارٹی کے رکن اور سینٹ کی مسلح افواج کی کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر جان مکین نے جمعرات کے روز اپنی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے. انہوں نے اپنی حکمت عملی میں تجویز کیا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ افغانستان میں معاونت کا کام جاری رکھنے کے لیے امریکہ سخت شرائط پر عمل درآمد کرائے. وہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کو تقریباً 7 ماہ ہو چکے ہیں. ہمارے پاس کوئی حکمت عملی نہیں رہی، جبکہ زمینی حالات یہ ہیں کہ وہاں صورتحال خراب تر ہو گئی ہے. بقول ان کے ہزاروں امریکی افغانستان میں اپنی جانیں دے چکے ہیں. فوج کی نگاہیں کمانڈر ان چیف کی جانب لگی رہتی ہیں. افغانستان میں طویل مدت کے لیے امریکی دستوں کی تعیناتی پر زور دیتے ہوئے ایریزونا سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مکین عسکریت پسند گروہوں کی پشت پناہی کرنے پر پاکستان کے خلاف سخت اقدامات بھی تجویز کرتے ہوئے کہتے ہیں پاکستان جب تک دہشت گرد تنظیموں اور حقانی نیٹ ورک کی معاونت اور پناہ گاہیں فراہم کر رہا ہے تب تک اس پر ایسی سفارتی، عسکری اور اقتصادی پابندیاں عائد کی جائیں جنہیں گاہے بگاہے پرکھا جا سکے. صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز نیو جرسی میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے افغان حکمت عملی پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں کہا، ہم اسے مکمل کرنے کے بالکل قریب ہیں. یہ میرے لیے ایک بڑا فیصلہ ہے. جب میں نے عہدہ سنبھالا تو حالات کافی خراب تھے. ہم انہیں درست کریں گے. مگر 17 سال کی جنگ، میں نے ایک کالم میں پڑھا، ہماری سب سے طویل جنگ. صاف بات یہ ہے کہ اس بارے میں فیصلہ جلد ہوگا. جن وجوہات کی بنا پر جان مکین نئی حکمت عملی پر زور دے رہے ہیں ان میں افغانستان میں آئے روز ہونے والے تشدد کے واقعات بھی شامل ہیں. گزشتہ روز صوبے ننگرہار میں اتحادی افواج کے فضائی حملوں میں تقریباً 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے. مقامی حکام کا کہنا ہے کہ وہاں پر جو افغان سیکورٹی فورسز ہیں وہ آئسس کے جنگجوؤں کے خلاف کارروائی میں مصروف ہیں. جی ساگر. ندیم یعقوب ہمیں امریکہ کی افغان پالیسی کے بارے میں اپڈیٹس دے رہے تھے. تھینک یو ندیم. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ولیم گڈ فیلو جو کہ سینٹر فار انٹرنیشنل پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. ولیم گڈ فیلو 1975 میں اس ادارے کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ایک ہیں. مسٹر گڈ فیلو اور ان کے ساتھیوں نے مل کر 80 کی دہائی میں اس قانون کے لیے کامیاب لابنگ کی جس کے تحت کسی بھی ملک کے لیے امریکی عسکری اور اکنامک امداد اس ملک کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کو دیکھ کر دی جاتی ہے. بل گڈ فیلو، ویلکم ٹو آور اسٹوڈیوز. تھینک یو فار کمنگ. Senator McCain has been urging the administration for some time now to reveal its Afghan policy, and finally yesterday Senator McCain brought his policy to the table. And
My question is, why this urgency? Why this pressure on Trump administration to reveal its policy? Well, I think it's pretty obvious the Trump administration doesn't have a policy, but having said that, the Obama administration's policy initially was to try to win a military victory over the Taliban, and then there were 140,000 NATO and U.S. troops in 2009, 2010. Didn't work. The Taliban had setbacks; they weren't defeated. So what happened is the administration withdrew most of the troops. We now have around 9,000, and the Obama administration's policy had been to keep the Ghani government on life support and make sure the whole thing didn't collapse. So Trump, I'm sympathetic in the sense that he has inherited a very difficult situation, 16-year war, and there's no military solution. And adding a few thousand more troops, as Senator McCain has advocated, won't change the trajectory of the war at all. तो विलियम गुडफेलो ये कह रहे थे कि सदर ओबामा के दौर में जो अफ़गानिस्तान में ट्रूप्स की तादाद में इजाफ़ा किया गया अफ़गान मसले को हल करने के लिए, उसमें कामयाबी नहीं हुई और सदर ट्रंप अमेरिकी सदर ट्रंप को इस हवाले से एक मुश्किल चैलेंज जो है वो वर्षे में मिला है और इसीलिए इस पॉलिसी को सामने लाने में देर हो रही है। सेनेटर हैज़ रेकमेंडेड अगेन एन इंक्रीज इन US troops for counter-terrorism operations and at the same time an integrated civil military approach. What is new and different from Obama administration's policy in Afghanistan? Well, it's hard to tell what's new. We've done this many times before. We did counterinsurgency, the famous COIN, when McChrystal was there, General McChrystal. I don't see anything particularly new about it. My feeling, and I've been following this for about 12 years, is that the Americans have three options. I mean, the Americans, not, the larger NATO force has three options. One is to try to win militarily, and they've tried that and it hasn't worked. And a few thousand more troops is not going to make much difference. Really, you need a couple 100,000, but there's no support in the United States or in our European capitals of our allies to do this. So the second option is to just leave. And President Trump has talked about that very briefly, but that, I think, is off the table. I don't think any U.S. president is just going to walk away because the Ghani government would collapse in short order. So the real only option, in my opinion, is a negotiated political solution. And the Obama administration paid lip service to that. They talked about it, but never really put a tremendous effort into it. The only way out, I think, is to try to reconcile the Taliban, who after all are Afghans. You're not going to kill them all, and there needs to be a national reconciliation. There needs to be a negotiation, and part of the negotiation is withdrawing U.S. troops. And all of the players, Russia, China, Iran, and Pakistan, want the U.S. troops out. The Pakistanis know that those troops are not just there for counterterrorism in Afghanistan, but they're there because of Pakistan as well. So the troops, that's something everybody can agree upon. So I think that there's the basis for a negotiated settlement that will act in Pakistan's interest as well as the interest of the other regional players. तो हमारे एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान की पॉलिसी के लिए इस वक्त अमेरिका के सामने तीन बड़े ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो ये है कि वहाँ पर अस्करी ताकत में इजाफ़ा किया जाए, लेकिन उनका ये कहना है कि थोड़ा बहुत इजाफ़ा जो है वो इस सिलसिले में मौसर साबित नहीं होगा, फिर वहाँ से या इनखला कर लिया जाए, वो भी फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता। और तीसरा ऑप्शन वो ये कह रहे हैं कि सियासी इसका हल है, सियासी नेगोशिएशंस हैं। आपका बहुत थैंक यू वेरी मच मिस्टर गुडफेलो फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियोज़ एंड जॉइनिंग अस। जी साकिब। और माहिरीन का ये भी कहना है कि सदर ट्रंप शुमाली कोरिया के मसले की शक्ल में अपनी सदारत के खारजा पॉलिसी के सबसे मुश्किल चैलेंज का सामना कर रहे हैं। सदर ट्रंप की जानिब से जहां शुमाली कोरिया को आग और गुस्से के साथ जवाब देने के बयान पर सख्त तनकीद हुई, वहीं शुमाली कोरिया के गवाम पर हमले की धमकी के बाद गुज़िश्ता रोज़ सदर ट्रंप ने इसके लिए पहले से भी ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। और ये चैलेंज एक ऐसे वक्त में इंतहाई शक्ल इख्तियार कर रहा है जब पोल्स के मुताबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत में रिकॉर्ड कमी हुई है। हालिया पोल्स में
में ये बात भी सामने आई है कि अमरीकियों की अक्सरियत शुमाली कोरिया के मसले को एक संजीदा इशू समझती है। ताहम सर्वे में हिस्सा लेने वालों की सिर्फ 1/3 की राय में सदर ट्रंप इस खतरे से निपटने की सलाहियत रखते हैं। शुमाली कोरिया और अमेरिका के दरमियान एटमी हथियारों पर तनाव के माहौल ने दुनिया की तारीख में एटमी हथियारों का निशाना बनने वाले वाहिद मुल्क जापान में एटमी हथियारों के हुसूल के हवाले से बहस का आगाज़ कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट ने जापान के खदशात में इजाफा कर दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि शुमाली कोरिया एटमी हथियार बनाने के करीब है। ये बहुत मुमकिन है कि शुमाली कोरिया आज के रोज टोक्यो पर एटमी हथियारों से हमला कर दे। अगर वहां से मिसाइल्स दागे गए तो वो 10 मिनट में जापान पहुंच जाएंगे। कहा जा रहा है कि शुमाली कोरिया के पास जापान को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले 200 से जायद मिसाइल मौजूद हैं। टोक्यो जैसे गुंजान आबाद शहर पर हमला हजारों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। जापान का आइन सिर्फ अपने दिफा के लिए फौजी कार्रवाई की इजाजत देता है। जापानी वजीर खजाना समेत कदामत पसंदों की राय है कि जापान को एटमी हथियार बनाने की ऑप्शन को खुला रखना चाहिए। इस मामले पर जनूबी कोरिया में आम बहस होती है, लेकिन पोल्स के मुताबिक सिर्फ 5% जापानी एटमी हथियार रखने के हक में हैं। मुझे नहीं लगता कि हम मुस्तकबिल करीब में एटमी हथियार बनाएंगे। हत्ता कि अगर जनूबी कोरिया ऐसा करे भी तो हम सबसे आखिर में ही होंगे। सवाल ये भी है कि क्या एटमी हथियार सफारती हल में मदद करेंगे। अगर हमारे पास एटमी हथियार हों तो हम शुमाली कोरिया के एटमी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई करेंगे। क्या ऐसा होगा? मेरे ख्याल से नहीं। इस्मा, नागासाकी और हिरोशिमा पर 1945 में किए जाने वाले इस एटमी हमले की सालगिरह मनाई गई, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली थी। सालगिरह की तकरीब पर मुमकिना जंग पर गुफ्तगू का गलबा रहा। मुस्तकबिल करीब में एटमी जंग के हवाले से खतरात में इजाफा हो रहा है। जापानी वजीर आजम ने मुल्क के मौक़िफ़ की याद दहानी करवाई। ये नागासाकी है, वो शहर जो अब्दी अमन के लिए दुआ करता आया है। मैं एटमी हथियारों के बगैर पुरअमन दुनिया के क़याम की कोशिशों के लिए अपने अज़्म का इरादा करता हूँ। माहिरीन सवाल करते हैं कि अगर जापान हमले का निशाना बना तो क्या वो इस अज़्म का इम्तिहान होगा। हेनरी रिजवेल के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। पाकिस्तान में आज अक़लियतों से यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के मसीही फ़नकारों का एक खूबसूरत नगमा आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, जो इस वक्त इंटरनेट पर बहुत मकबूल हो रहा है और जहां दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें और बहुत सी दूसरी मुनफरिद वीडियोज़ भी मौजूद हैं। आप हमारा ये शो भी शाम 8 बजे हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा आज के शो में हॉलीवुड से कुछ अहम और चटपटी खबरें भी आप देख सकेंगे, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड व्यू, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पेश आने वाले कुछ इंटरेस्टिंग वाक़यात की झलकियाँ। अफगान हुकाम का कहना है कि नेटो की जानिब से मशरकी नंगरहार में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फिजाई हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 16 शहरी हलाक हो गए हैं। नेटो के तर्जुमान ने VOA को बताया कि नेटो इन इल्जामात की तहकीकात कर रहा है। क्यूबा में जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले अमरीकी सफारती अमले और उनके अहले खाना के बाद कैनेडियन हुकाम ने भी कहा है कि क्यूबा में उनके सफारती अमले का एक रुकन कुव्वत समात से महरूम हो गया है। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने सिनफी तफरीक के हवाले से मुलाजमीन के खदशात दूर करने के लिए बुलाई गई एक कंपनी टाउन हॉल कैंसिल कर दी है। गुज़िश्ता हफ्ते गूगल ने अपने एक इंजीनियर को कंपनी की सिनफी बराबरी की पॉलिसियों पर तनकीद की बुनियाद पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। यूरोपीय यूनियन में फूड एंड सेफ्टी के इंचार्ज कमीशन ने यूरोप में जहरीले अंडों के मामले पर तहकीकात के लिए इजलास बुला लिया है। गुर्दों और जिगर को नुकसान पहुंचाने वाले अंडों की फरोख्त के इंकशाफ के बाद 11 यूरोपीय ममालिक से कई मिलियन अंडों को मार्केट से हटा लिया था। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं?
We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। जनूबी एशिया की तारीख का एक अहम संग-मील 14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान और भारत की आज़ादी के 70 साल मुकम्मल होने पर तय पा रहा है। अगस्त के महीने में पाकिस्तान और भारत में अवाम अपने अपने मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाने के साथ 70 साल पहले होने वाली उस तकसीम को भी याद करते हैं जो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत की वजह बनी, जिसमें अनगिनत इंसानों की जानें गईं और लातादाद अपने घरों से बेघर हुए। व्यू 360 में देखना मत भूलिएगा हमारा पीर 14 अगस्त का शो, जिसमें हम लाएंगे पाकिस्तान और अमेरिका से आपके लिए कुछ खुसूसी रिपोर्ट्स। ले भी डर दे जनाब, कोई इधर वर्षा मार रहा, कोई इधरों वर्षा मार रहा, और डर यही सी कि इन्होंने मार देने, छड़ने नहीं है। गड्डी आ गई जी, पाकिस्तान जाना, गड्डी आ गई पाकिस्तान जाना। और जो वाक़या सी ना जी, सारी ज़िंदगी भुलना नहीं, और अगे मेरा ख्याल है मरन तो बाद भी सानू नहीं भुलना होगा। वो एडे ही अज़ियतनाक वक्त थी। यकीनन ये यादें हम में से बहुत सौ को नहीं भूलेंगी। अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां पिछले माह रिजवाना हमीद ने उस वक्त तारीख रकम की जब वो खैबर पख्तूनख्वा के क़दामत पसंद मुआशरे में, जहां मजहबी रवायात की वजह से ख़वातीन का घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं समझा जाता, मर्दों के पुलिस स्टेशन की पहली सरबराह बनी। आइए देखते हैं। रिजवाना हमीद सूबाई पुलिस फोर्स के साथ पिछले 15 बरस से वाबस्ता हैं। वो बहुत से जराइम की तहकीकात और मुश्तबा तकरीबकारों की पनागाहों के खिलाफ खतरनाक छापों की कार्रवाई कर चुकी हैं। इधर किस लिए आए हो? मैं काम की जा रहा हूँ। लेकिन एक अक्सरियती क़दामत पसंद माशरे में मर्दों के पुलिस स्टेशन की सुपरवाइज़र होने का दबाव वो महसूस कर रही हैं। लेकिन रिजवाना हमीद अपना काम खुश असलूबी से अदा कर रही हैं और ये तासुर ख़त्म करना चाहती हैं कि औरतें मर्दों से किसी भी तरह कम हैं। आप किसी मर्द को एक दिन बच्चे हवाले करके पूरा घर उसको दे देंगे, मैं ये घर संभालूँ, शाम को मैं आके सारा मैंने आपसे लेना है कि ये काम करने, तो मेरा ख्याल है वो मर्द नहीं कर सकता। ख़वातीन ये भी करती हैं। वो कहती हैं कि अब तक इलाके की ख़वातीन अपनी शिकायत लेकर थाने आने और मर्द पुलिस अफसरों के साथ बात करने से घबराती थी। पेशावर एक ऐसा इलाका है जिसमें चार दीवारी की बात है, औरतों पे जो तशद्दुद होते हैं, वायलेंस होते हैं, वो घर में ही बर्दाश्त करती हैं। तो बीइंग अ फीमेल ऐसे जो रह कर मैंने ऐसी ख़वातीन को बाहर निकाला है, उनको ऐसा लेसन दिया है, उनके साथ ऐसे मिल के काम किया है कि मतलब वो आएँ, बाहर आएँ, हम उनके लिए बैठे हुए हैं। तो वो जब अंदर आ जाती है, मुझसे मिल लेती हैं, और जब वो अपना प्रॉब्लम कह देती हैं, और फिर मैं अपने स्टाफ के ज़रिए, अपनी टीम जो मेरे साथ टीम काम कर रही है, उस टीम के ज़रिए जब मैं उसका मसला हल कर लेती हूँ, तो वो जाते वक्त बहुत दुआएँ बहुत मतलब मुतमईन होकर जाती है। और वो फिर नेक्स्ट जो उनके रेफरेंस से जो ख़वातीन आती हैं, फिर वो पहले कहती हैं कि आपने उसका मसला हल किया, अब मेरा भी करना है। हाँ, में पश्तून घराने अपनी ख़वातीन को पुलिस फोर्स में शमूलियत की इजाज़त देने से हिचकिचाते रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ की पुलिस में ख़वातीन बमुश्किल 10% हैं। लेकिन ओहदेदारों का कहना है कि मीडिया में ख़वातीन पुलिस अफसरान का मुस्बत इमेज देखकर इस रुझान में तब्दीली आ रही है। जो ख़वातीन हमसे मिलने आती है तो वो बाद में कह जाती है कि मैडम पुलिस में भर्ती का क्या तरीका है, हम कैसे आएँ पुलिस में। तो फिर मैं उनको जाते जाते मैं उनको फिर समझा भी देती हूँ, अगर आप कांस्टेबल आ रही हैं तो आपके लिए ये चाहिए, अगर आप एक फूल वाली अफसर बन के आना चाहती हैं तो आपके लिए ये क्राइटेरिया। अयाज गुल के साथ सबा शाह खान, उर्दू VOA। पाकिस्तान से एक इंस्पायरिंग कहानी हमने देखी। अफ़गानिस्तान के रवायती माशरे में भी जहाँ सियासी और कबायली रवायात, करप्शन और ख़ानदानी मनसूबा बंदी जैसे मौज़ूआत पर बात करना मुश्किल समझा जाता है, ऐसे में हसास मौज़ूआत को टेलीविज़न पर लाना, तंज़ व मज़ाक़ के पेराए में सियासत और सियासतदानों पर बात करना और भी मुश्किल काम है। लेकिन अफ़गानिस्तान में एक टेलीविज़न शो इन तमाम मुश्किलात और ख़तरात के बावजूद अपनी जगह बना रहा है। कैसे, आइए देखते हैं। रिश्वत, कबायली सरदार और भी बहुत कुछ चंद ही मौजू हैं जो इन अफगान कॉमेडियंस के मजाक का निशाना बनने से बचे हुए हैं। इनका टेलीविजन शो लाफ्टर नेटवर्क अफगानिस्तान जैसे इंतहाई कदामत पसंद मुल्क में मुतनाज़िया मौजूआत को अपने मजाक का हिस्सा बना रहा है। खतरात के बावजूद ये एक कामयाब शो है। यहाँ कॉमेडी करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे भारत में गाय को ज़िबाह करना।
जबकि हिंदू गाय की पूजा करते हैं। अफगानिस्तान में कहा जाता है कि हंसना एक गुनाह है, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहकर हमारी हौसला अफजाई करते हैं कि आप लोगों को हंसाने का काम सबसे बेहतरीन करते हैं। ये हफ्तावार शो 2 साल से नशर किया जा रहा है। इसमें अक्सर बेसाख्ता अदाकारी पेश की जाती है, जिसमें हकीकत और तंज के दरमियान फर्क अक्सर धुंधला जाता है। अब सूरत हाल ये है कि आम अफगान शहरी शो की टीम से ताकतवर शख्सियात के गलत कामों से पर्दा उठाने और उनकी हंसी उड़ाने के लिए राब्ता करने लगे हैं। अब लोगों के लिए वाहिद काबिल एतमाद जरिया मीडिया है। बाज़ औक़ात तो लोग मीडिया को हुकूमत के जुडिशल अदारों पर भी तरजीह देते हैं। अक्सर लोग कई घंटों और दिनों तक हमारे किसी साथी से मिलने का इंतजार करते हैं ताकि इनको अपना मसला बता सकें। लेकिन अब भी एक ऐसा ममनुआ रवैया मौजूद है जिसे खत्म करने की जरूरत है। वो ये कि अब तक कोई खातून इस टीवी शो का हिस्सा नहीं बन सकी। लिहाजा जब भी किसी खातून किरदार की जरूरत पड़ती है तो कॉमेडियन सियार मतीन औरत का भेस बदल कर ये किरदार निभाता है। हमारा मुआशरा एक शो में औरत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि जब हम एक खातून का किरदार निभाते हैं तो हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जो अपनी बेटियों को स्कूल भेजने की इजाजत नहीं देते, वो इन्हें शो में आने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? मजा और उनके खाके अफगानिस्तान के तनाज़ात और सियासी परेशानियों से दूर भागने की एक नायाब और आजादाना आवाज है जो हादसे का शिकार इस मुल्क में हंसी बखेर रहे हैं। वर्दा खलील, VOA, वाशिंगटन। बहुत खूबसूरत कहानियां देखी हमने आयशा आज के शो में। आपको डिज्नी की फिल्में पसंद है? वैसे डिज्नी की फिल्में किसे पसंद नहीं है? बिल्कुल। और अगर आपको डिज्नी की फिल्में पसंद है तो अच्छी खबर ये है कि अब आप ये फिल्में ऑनलाइन भी देख सकेंगे, लेकिन कब और कैसे, ये जानने के लिए देखते हैं इस हफ्ते का हॉलीवुड हाइलाइट्स, जिसमें शामिल हैं कुछ और चटपटी और मजेदार खबरें। डिज्नी अपनी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस ला रहा है। जी हाँ, डिज्नी ने इसी हफ्ते बताया कि वो अपनी मूवीज नेटफ्लिक्स से हटा रहे हैं। डिज्नी की वीडियो ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग सर्विस 2019 में आ रही है। खबर ये भी है कि वो अगले साल ESPN स्पोर्ट्स की भी स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू करेंगे। तो अब आप डिज्नी की स्ट्रीमिंग सर्विसेज की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी तैयार हो जाएं। एक्ट्रेस एम्बर हर्ड ने इंस्टाग्राम के जरिए ऐलान किया कि वो और टेस्ला कार कंपनी और स्पेसएक्स के बानी अरबपति एलॉन मस्क अलग हो रहे हैं। एम्बर इस अलगगी की वजह दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता होना बताती हैं, लेकिन वो अभी भी करीब हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एलॉन मस्क 3 दफा शादी कर चुके हैं, जबकि एम्बर के इसी साल के शुरू में एक्टर जॉनी डेप से तलाक हुई थी। मशहूर गाने राइनस्टोन काउबॉय के सिंगर ग्लेन कैम्बेल इस दुनिया से चल बसे। 81 साला कैम्बेल अल्जाइमर्स के मरीज थे, पर मौत की वजह क्या थी ये अभी मालूम नहीं। 1960 और 1970 के सबसे बड़े सितारे कैम्बेल 4.5 करोड़ रिकॉर्ड्स बेच चुके हैं, 12 एल्बम्स और 75 चार्टबस्टर्स हिट्स भी दे चुके हैं। डेविड लेटरमैन के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर, लेटरमैन टेलीविजन पर वापस आ रहे हैं। CBS लेट शो के फॉर्मर होस्ट नेटफ्लिक्स के एक नए टॉक शो में नजर आएंगे। 6 एपिसोड्स की ये सीरीज 2018 से शुरू होगी। 10 मर्तबा एमी अवार्ड जीतने वाले लेटरमैन ने अमेरिका की लेट नाइट टीवी हिस्ट्री में खूब शोहरत पाई है। शुचि जैन, उर्दू VOA। ये था आज का व्यू 360। पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। Being the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, I feel a great responsibility